So hello everyone, welcome back to our new YouTube video in which we have very special guest, a young entrepreneur, the founder of Collegepreneur, most awaited Mr. Ara Gupta, who is from NCR Delhi. So welcome Ara from our YouTube channel. So would you like to correct our introduction? I mean, it is perfect, or do you like some changes in that? Thank you, first of all, Anshuman, for hosting me. Let me give you a small brief about me. Yeah, yeah, Hey sure. people, myself. Hey people, myself Arav. I had been the founder of College Trainers and a YouTuber too. More than 60 podcasts are listed on my YouTube channel, including some venture capitalists, some Shark Tank founders, and founders made two posts. Right now, I'm looking forward to start something in e-commerce field. Yeah. Nice, very nice. So, Arav, we will be doing this podcast around entrepreneurship, right? And then we will be moving from towards the content creation because your expertise in this, right? And after that, we will be seeking care of the various opportunities which a college student should have, right? So, we will be doing it into three segments. So, let us start with first one. So, as we're talking about the your startup, so let me know startup do actually, right? That is college and collegepreneurs. Hmm. So initially, we had started College Preneur just as a community-based platform where Hmm. we were providing internships to different students. I had a connections with some of the founders based in Delhi NCR. It was during my college time only. Then I pivoted it into a podcast marketing segment where we used to provide podcast marketing to different edtech firms, universities through placing their alumni on our podcast channel and Hmm. getting a right source of information from them. आप लोगों को पता होगा एक फ्रेशर स्टूडेंट का क्या माइंडसेट रहता है कि कभी भी मैं कॉलेज देखने जाता हूँ ना, तो कॉलेज में जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो अपने कॉलेज के बारे में तारीफ करता है, बट जो कॉलेज का एल्यूमनाई होता है ना, उसने अपने पूरे 4 साल 3 साल कॉलेज में बिताए हुए होते हैं। Exactly. दैट जो बंदा होता है ना कॉलेज का, उस पर हम बेट ले सकते हैं, वो हमें राइट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दे सकता है। Hmm. एक फ्रेशर स्टूडेंट का माइंडसेट अंशुमन ऐसा रहता है कि उसको 70% प्लेसमेंट चाहिए होती है कॉलेज में, 30% कैंपस लाइफ चाहिए होती है। वो एल्यूमनाई हर चीज डिटेल में एक एक चीज डिस्कस करता है अबाउट द कॉलेज फैकल्टीज, कितने कॉलेज में फेस्ट हो रहे हैं, क्या क्या प्लेसमेंट है, हाउ मेनी कंपनीज आर कमिंग इनटू द कैंपस। तो हम उस पर्टिकुलर बंदे से एक रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं थ्रू पॉडकास्ट। All right. So, I mean, this you do it on your YouTube and host. You have also a website, right? Over there. Yeah, previously I was doing on my YouTube itself, but as our distribution increases, हमारे पास around 7 to 8 universities at Delhi NCR की, so my YouTube channel was not only one, हमारे Hmm. पास many influencers हैं और बहुत बड़े बड़े influencers हैं, उनके channel पर भी podcast host करते हैं। Okay. So basically, आपका काम है just to host the podcast with the alumni of that particular college, so that the student can get the real insight about the college, right? Yeah, we have around 15,000 plus students community जो लोग Very nice. हर साल अपडेट होते हैं। हम पर्टिकुलर किसी भी कॉलेज में जाने से पहले उन सबकी क्वेरीज लेते हैं कि क्या क्या उनके मेजर क्वेश्चंस हैं, Hmm. क्या क्या उनकी क्वेरीज है। देन वी यूज्ड टू पुट दी दोस क्वेरीज इन फ्रंट ऑफ द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन दैट इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे एंड से कंफर्मली आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। सो दिस इज द सिनेरियो, वी आर लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एल्यूमनाई। एल्यूमनाई भी स्टूडेंट्स ही चूज करते हैं। थ्रू दैट एल्यूमनाई हम वो पॉडकास्ट क्रिएट करते हैं और उसमें हर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राइट नाउ वी आर मूविंग आल्सो फॉरवर्ड विद सम लाइव क्लासेस जहां वो फ्रेशर स्टूडेंट्स 1 to 1 पूछ पाए। अंशुमन, यू नो व्हाट, लाइक कि हर कॉलेज से बस एक टॉप एल्यूमनाई जाता है और Hmm. सारे फर्स्ट सेकेंड ईयर के बच्चे फ्रेशर स्टूडेंट्स ट्राई टू क्रिएट कनेक्शंस विद देम कि भैया मुझे बता दो ये चीज, बता दो ये चीज, बना दो। एंड इट्स नॉट Exactly. पॉसिबल फॉर दैट सिंगल पर्सन टू क्लियर आउट ऑल द डाउट्स। सो दैट्स Exactly. वाई कि एक पॉडकास्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू, एक कोलैबोरेटेड डाउट्स के थ्रू वो सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाती है। दिस इज एन अनएक्सप्लोर्ड एल्गोरिथम टिल नाउ, किसी ने Hmm. अभी इसमें इंडस्ट्री में ट्राई नहीं करा। दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ पेटेंट टाइप ऑफ थिंग, जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड। या All right. Very nice idea. So, I mean, when did you came up with this idea? While you also said that when you were in your college, right, you were doing something related to that, not exactly. So, how it was possible to you? See Anshuman, it all had started from my first year itself. First semester में I was creating some vlogs, some events, some, like I was exploring a lot in sports activities, trying to get into UPSC gate. मैं हर चीज कर रहा था because मेरे को नहीं पता था कि क्या करना था। फिर what happened is during my third year, Hmm. during my second year, third semester,
when COVID finishes, I started getting interest into entrepreneurship, startups वगैरह. मैं networking meets में जाना चालू करा. मैंने likely minded people को अपने surround करना चालू करा. जब तक मेरे पास अराउंड 100-200 कॉलेज स्टूडेंट्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें हम लोगों कॉम्पिटिशन्स करवाते थे, अलग अलग चैलेंजेस कराते थे, स्पीकर्स को बुलाते थे जो अपने कॉलेज में रहकर या बाहर रहकर अच्छा कर रहे हैं. आई नेम दैट कम्युनिटी नेम्ड एज कॉलेज के बच्चे, KOLLEGE के College बच्चे. kids. All right. फिर या फिर मेरे पे जितना जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा स्टार्टअप्स का, Hmm. फाउंडर्स का, उनकी सबकी एक क्वेरी रहती थी, यार वी आर लुकिंग फॉर सम कॉलेज इंटर्न्स दोस हु आर स्पेशलाइज्ड इन देयर डोमेन्स एंड वी वांट टू गिव देम अ थोड़ा सा स्टाइपेंड और वो हमारे बेसिस पे काम कर ले. कॉलेज स्टूडेंट्स का भी रहता है टू गेट देम एक्सपोजर एंड ऑल ऑफ द स्टफ. उनको एक बड़ी फर्म में काम करने का मौका मिलता है. तो Right. मैंने एक उसको कॉलेज प्रेन्योर्स को, उस कॉलेज के बच्चों की कम्युनिटी को रीब्रांड कर दिया इनटू कॉलेज प्रेन्योर्स. मैंने खुद अपनी सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप्स करी थी थोड़ी सी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, तो वहां से मैंने थोड़े से कैपिटल जनरेट कर कर डोमेन लिया, Hmm. वेबसाइट वगैरह बनाई. कम्युनिटी मोनेटाइज करने के लिए आई हैड हायर्ड सम ऑफ द कम्युनिटी मैनेजर्स, डिस्ट्रीब्यूशंस करे. और फिर मैंने एक सब्सक्रिप्शन मॉडल निकाला अंशुमन. इट्स लाइक कि 10,000 रुपीज में वी विल बी गिविंग 8 इंटर्न्स टू डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टअप्स. Very क्योंकि nice. एक जो स्टार्टअप होता है उसको साल में हम 8 इंटर्न्स देंगे और Hmm. पर एक पर्टिकुलर इंटर्न से हम उसका 20% स्टाइफंड लेंगे फर्स्ट मंथ में. लाइक कि एक एवरेज प्राइस था एक इंटर्न का 5,000 रुपीज था. उसको मंथली बेसिस में अंशुमन 5,000 रुपीज देते थे वो स्टार्टअप. तो हमने ये लगा दिया था कि फर्स्ट फर्स्ट मंथ का आपको अपने 5,000 का 20% हमें देना पड़ेगा क्योंकि आप कॉलेज ट्रेनियर्स की साइड से You are getting प्लेस हुए हो internship. स्टार्टअप. Hmm. Right. Yeah, so we did around 8 to 9 collaborations with startup. Initially हमने 2 से 4 months में I had connected with major startups क्योंकि मैं weekly basis अपना पूरा weekends में startup meets पे लगाता था. Hmm. तो वहां से I had been like connecting with many of the community startups. तो वहां मैंने फॉर्म सर्कुलेट कराए, ब्रांडिंग वगैरह करने के लिए बहुत चीजें करी हमने उसमें स्टार्टिंग में. तो फिर Hmm. अंशुमन व्हाट हैपेंड इज कि आई एक्सप्लोर्ड अ न्यू एल्गोरिदम ऑफ कॉलेज एल्यूमनाइज. उनको मेनली प्रॉब्लम आती थी प्लेसमेंट्स के ऊपर. तो Huh. वहां से आई गॉट टू नो कि एल्यूमनाई कैन बी द ओनली वन जो इनको प्लेस कर सकता है. एंड दिस एल्यूमनाई वाला सेगमेंट विल बी मोर इम्प्रोवाइज देन इंटर्नशिप वाला, क्योंकि मेरे माइंड में था इंटर्नशिप बेस में तो आई कैन नॉट बीट इंटर्नशाला एंड देयर आर Exactly. सेवरल बिग Many प्लेयर्स. more. बट Hmm. स्टिल मेरे को ना मतलब व्हाट आई बिलीव इज कि आप इंडस्ट्री में घुसकर इंडस्ट्री का लैग पता कर सकते हो Hmm. मार्केट रिसर्च करने के बाद. तो मैंने भी ऐसे सोचा कि यार अभी मेरे पे कुछ नहीं है स्टार्ट करने के लिए, तो इससे स्टार्ट कर लेते हैं, आगे जाकर पिवट कर लूंगा मैं जरूर. एंड आई पिवटेड और वो अभी स्मूथली चल रहा है. दैट वाज द होल जर्नी ऑफ कॉलेज So ट्रेनियर्स. आपने ये pivot कब किया? In during your college, I mean third year, or when did you figure या out it? आई एम अंशुमन राइट नाउ इन माय थर्ड ईयर. तो अभी मैं 6 सेमेस्टर में हूँ. मैंने इसको 5th सेमेस्टर में पिवट करा था. Okay, okay. Very similar story I had also because I'm also in sixth semester. Very nice. So, all right. So when you pivoted, so how do you feel that is it going well or you are facing some problems? How do you look that opportunity in the future and where you wanted to take your startup after 4 or 5 years? Where do you look your startup to? यार सी अंशुमन, आई हैव सम लाइक मेजर एम्स एज की मेरे को लगता है फ्यूचर में ये कॉलेज की इंडस्ट्री भी विल हैव अ स्मॉलर सेगमेंट. तो मैं मोस्ट प्रोबेबली स्टार्टअप से आफ्टर 2 इयर्स और 1 ईयर के बाद एग्जिट लेना ही प्रेफर करूंगा. आई बी गोइंग समवेयर जिसमें और एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस बनाने की मेरी लाइक इच्छा है टाइप ऑफ थिंग. तो अभी राइट नाउ एज आई मेंशनड यू कि मेरे 7 से 8 यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन है. इन द Hmm. फ्यूचर आई विल बी गोइंग विद मोर यूनिवर्सिटीज और एक टाइम पे इसको मैं स्टेबल कर दूंगा दैट कि या अब माइट बी इसको और एक्सपैंड करने के लिए मैं जितने एफर्ट्स लगाऊंगा ना, अगर मैं उतने ही एफर्ट्स अपने किसी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में लगाऊंगा दैट Exactly. विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर मी इन द फ्यूचर. देखो यार, धंधा कोई भी छोटा नहीं होता. आई नो कॉलेज ट्रेनियर्स कैन बी अ बिग इंडस्ट्री. इंडिया में 1,000 से ज्यादा कॉलेजेस है. Hmm. एक बार हमने सबसे कोलैबोरेट कर दिया तो वी कैन बी ह्यूज. Right, बट right. स्टिल मेरा जो मोटिव है ना, मेरा जो फोटे है, वो मेरे को लगता है कि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में ज्यादा है. सो दैट्स व्हाई आई एम राइट नाउ एक्सप्लोरिंग सम ई कॉमर्स सेगमेंट, सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. और एक और अंशुमन इसमें चैलेंज है दैट कि ये बिजनेस हमारा सबसे ज्यादा बूम करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशंस. Yes. ड्यूरिंग द Season-based टाइम ऑफ business. एडमिशन सीजन Yeah. बेस्ड बिजनेस. दैट्स व्हाई Exactly. कि मैं पिछले पिछले 2 सीजन से
आई एम लाइक वेरी मच पेसिमिस्टिक कि मैं क्या बताऊं कि व्हाट टू डू ड्यूरिंग ऑफ सीजन। आई वाज प्रिपेयरिंग लास्ट सीजन में, तो मैंने इस सीजन ये सोचा है कि आई विल बी गोइंग विद सच प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस जो कि नॉट जस्ट सीजनल रहेगा, जो हाँ. कि 12 महीने चलता रहेगा। दैट्स द मेन मोटिव। So you're looking towards that how can you sustain your product towards whole year, right? Rather than only focusing on the season. Yeah, very nice. या एक्चुअली ना, मतलब इनिशियली जब भी आप स्टार्ट करते हो ना, आपको नहीं पता आप कहाँ जाओगे। आई डेंट Mhm. जस्ट मैंने नहीं सोचा था कि ये इंटर्नशिप से एल्यूमनाई बन जाएगा, कॉलेज के बच्चों से कॉलेजप्रेन्योर Never. बन जाएगा। या तो मतलब इट्स लाइक कि जस्ट यू हैव टू गो अराउंड थिंग्स को पिवट करो। वी हैड इंक्यूबेटर, हमने एआई वगैरह भी जोड़ा था इसमें कि एआई के थ्रू हाउ वी कैन जस्ट टेक केयर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस ऑफ स्टूडेंट्स। तो नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही थी। तो आई वाज गोइंग इनटू सम सॉर्ट ऑफ मेटावर्स और वेब 3 भी अपने कॉलेज टाइम में, और ट्रेडिंग भी करी थी मैंने। तो दैट ऑल गॉट शटेड डाउन, उसमें सब में मैं फेल हो गया। Hmm. आई एंडेड अप विद कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म, कॉलेज के बच्चे। फिर मैंने रीब्रांड करा Entrepreneur कॉलेजप्रेन्योर्स, में. वेबसाइट वगैरह बनाई। या तो Alright. दैट्स द थिंग गोइंग ऑन है। अब मेरे को लगता है कि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस विल बी माय जस्ट फाइनलाइज आइडिया। Very nice. I think when you have experience, then you start again. Then you start with your experience. I feel so. माय पेरेंट्स वाज आल्सो आस्किंग मी द सिमिलर थिंग, तो मैंने यही बोला उनको कि ड्यूरिंग एवरी स्टार्टअप, एवरी एक्सपीरियंस आई टुक ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम ना, दैट विल बी एक्टिंग एज अ लेवरेज फॉर मी जब मैं अपना प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस चालू करूंगा। तो दैट्स द होल सिनेरियो। Yeah, yeah, yeah. I feel so, brother. And one more thing I wanted to ask, because you have been experiencing your entrepreneurship journey since you joined the college. I have seen that many of the students who wanted to be an entrepreneur since beginning, but they have the idea also, but they don't execute, right? They have the failure. I mean, that kind of mindset that they will be fail. Even there are a lot more reasons that they cannot be execute that plan. So, what one advice you wanted to give that? I mean, those person who wanted to get into that, but they are stuck on some points. यार सी अंशुमन, फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव ना, मतलब जितने मैंने स्टूडेंट्स से बात करी है, दे हैव जस्ट टू डिलेमास इन देयर हैंड। Hmm. एक तो कि मैं एग्जीक्यूट कैसे करूं, ठीक है, हाँ. और एक तो कि एग्जीक्यूट करने के बाद मैं फेल हो Fail. जाऊंगा तो क्या करूं। ठीक Right. है यार, आई थिंक कि फेल होने वाला सिनेरियो तो मतलब हमें सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इट्स अपॉन कॉलेज और हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है। तो अगर फेल हो जाओगे तो कुछ होगा नहीं। और मतलब अब फेल मतलब ये भी सोचना चाहिए स्टूडेंट्स को कि अभी भी तो कुछ नहीं हो रहा, अभी मैं चल रहा हूँ। अगर मैं कुछ कर कर फेल होऊंगा तो माइट भी और एक्सपीरियंसेस मिलेंगे मेरे को। तो मेरे पर्सपेक्टिव से फेल वाला तो सिनेरियो किसी भी कॉलेज स्टूडेंट को अपने पास लाना ही नहीं चाहिए। No, yeah. लोगों को लगता है कि टाइम वेस्ट हो जाएगा, बट मतलब यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम ब्रो। सीरियसली जस्ट गो अराउंड योर सराउंडिंग्स, जो आपके साइड में बच्चे कर रहे हैं दैट ऑल आर स्टडिंग, बट आपके पास बहुत टाइम है अभी करने। सेकेंड सिनेरियो अंशुमन रहता है कि एग्जीक्यूट कैसे करें। Hmm. दैट्स द मेजर प्रॉब्लम, जो मेरे को लगता है कि इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट्स के पास जाना चाहिए, ये वाला, दैट कि वो ना सही लोगों को रीच आउट नहीं कर पाते। सो फॉर द सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स मेजरली आई बिलीव कि एग्जीक्यूशन पार्ट कहाँ स्टक करता है, इज लाइक कि वो सही लोगों के पास रीच आउट नहीं कर पाते। जो उनका आइडिया रहता है, एग्जीक्यूशन का फर्स्ट स्टेप ही रहता है कि मार्केट रिसर्च करो आप, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। सही लोगों के पास वो रीच आउट नहीं कर पाते। तो उसका पहला सिनेरियो रहेगा अंशुमन, ट्राई टू सराउंड योरसेल्फ विद दिस टाइप ऑफ पीपल जिनके मेन मोटिव्स है, मेन गोल है। वो आपको गो थ्रू करेंगे कि आप अपने आइडिया को कैसे एग्जीक्यूट कर पाते हो। Right. सेकेंडली मैं कहूंगा ट्राई टू मास्टर द आर्ट ऑफ कोल्ड ईमेलिंग। अपने आइडिया, अपना जो बिजनेस, जो भी आप Hmm. एग्जीक्यूट करना चाहते हो, उसके लिए यू हैव टू रीच आउट टू सेवरल पीपल। आपका Hmm. अगर प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, अगर आप एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी ही चला रहे हो, दैट्स लाइक वेरी सैचुरेटेड मार्केट राइट नाउ। एवरी कॉलेज स्टूडेंट इज गेटिंग इनटू दैट। इवन Hmm. एवरीवन, एक दिन वो वीडियो एडिटिंग करता है, एक दिन वो ग्राफिक डिजाइनिंग करता है, फिर वो तीसरे दिन एक सोशल मीडिया मार्केटर मैनेजर बन बन जाता जाता है. है। उसके लिए भी यू हैव टू रीच आउट टू सेवरल क्लाइंट्स। तो पहले लिखो यार एक तमीज से कि दिस इज माय स्टार्टअप, और इसके लिए मेरे जो टारगेटेड ऑडियंस है वो है जो कंटेंट बना रहे हैं बस, जिनके पास टाइम नहीं है अपनी वीडियो एडिट करने का, जिनके पास टाइम नहीं है अपना मैनेज करने का, तो आई विल बी द वन जो मैनेज करूंगा। अब Hmm. मेरे को कहाँ मिलेंगे अंशुमन ये बंदे? मैं रीच आउट कर सकता हूँ थ्रू व्हाट्सएप कम्युनिटीज, थ्रू डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज, थ्रू इंस्टाग्राम, फेसबुक। अदरवाइज मैं ऑफलाइन इवेंट्स में जाकर ये अपनी सर्विसेज पिच कर प्रोवाइड सकता हूँ। करता हूँ. मैं Hmm. अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है अंशुमन, मैं अपने नेटवर्क्स में जाकर बोल सकता हूँ, उनको एक छोटा सा मैसेज ड्रॉप कर सकता हूँ कि ब्रो आई एम स्टार्टिंग दिस टाइप ऑफ सर्विसेज। अगर Hmm. आपके पास
कोई बंदा है जो लुक आउट कर रहा है ऐसी सर्विसेज के लिए, प्लीज रेफर मी। छोटा सा आप एक मैसेज फ्रेम कर सकते हो अराउंड। हर कॉलेज स्टूडेंट के पास 100-200 कॉन्टैक्ट्स तो होते ही हैं। Easily, easily. उनमें से अगर आप Hmm. उनमें से अगर आप 50-70 कॉन्टैक्ट्स को भी मैसेज कर दोगे और अपने फर्स्ट सर्विस फ्री दे दोगे, आई थिंक दैट थिंग विल बी टर्न आउट इनिशियली। Hmm. Very डेली good. बेसिस पे अगर आप अपने ही स्टेटसेस अपलोड करोगे, मेरे को दिखेगा भाई कि अंशुमन रोज स्टेटस अपलोड कर रहा है दैट ही इज लुकिंग अप फॉर सम क्लाइंट जो सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी मैनेज कर रहा है। मैं अपने अराउंड कोई भी बंदा सुनूंगा कि वो कह रहा है कि मेरे को ऐसा चाहिए कि कोई सोशल मीडिया मैनेज कर दे मेरा, तो मेरे को क्लिक होएगा भाई कि हाँ यार, एक लड़का मेरे कॉन्टैक्ट्स में बार बार रोज स्टोरी डालता है, तो मैं तेरे को उसका नंबर देता हूँ, कर लेगा। तो दीज हाउ रेफरल्स विल वर्क। तो ऐसे आपको ना अपनी चीजें थिंग्स एग्जीक्यूट करनी चाहिए। मैं कैसे करता हूँ अंशुमन, मैं तो यही सारा सिनेरियो लिख लेता हूँ, अपनी टारगेटेड मार्केट, Hmm. कौन कौन मेरे को पैसा बना कर देगा, क्या क्या चीज मैं उनको और फ्री दे सकता हूँ या फिर अवेलेबल कर सकता हूँ जिससे मेरे पे और कस्टमर्स आए। Very nice. Very practical advice you gave, actually. I think it will help a lot more our audience to grow, right? By the way, let's move to the second segment of the podcast, which is about content creation. So, as you talked that you started content creation since you joined the college, right? So, how did you and how and why? The thing is why you why you started content creating. यार एज आई मेंशन्ड अंशुमन, मतलब ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम फर्स्ट ईयर में आई वाजंट अवेयर व्हाट टू डू नेक्स्ट। Huh? ठीक है, आई ट्राइड लाइक नॉट जस्ट कंटेंट क्रिएशन, आई ट्राइड लॉट्स ऑफ थिंग्स। Something. Hmm. आई गॉट इनटू क्रिप्टोस, वेब 3 मेटावर्स, ट्विटर स्पेसेस, like I had also initiated my own community based platforms, collegepreneur। Hmm. मेरे को नहीं पता था मैं यूट्यूब पे क्या डालूंगा। मतलब मैंने अपने स्कूल टाइम पे ना वो जीता हुआ है एक मोनो एक्टिंग का, जस्ट एक मेरे पे अचीवमेंट है, वही मैंने जीता हुआ है। तो मेरे को एक्टिंग करनी सॉर्ट ऑफ पसंद है। तो वो मेरा स्कूल में खत्म हो गया था, तो मेरे को कुछ एक्ट करना था कैमरे के सामने कुछ। तो इसलिए मैंने यूट्यूब चालू करा कि चलो कुछ बढ़िया सा बनाएंगे। उसमें मेरे को कुछ नहीं पता था क्या बनाया था। Hmm. और फिर मैंने सोचा कि यार मेरे को अभी इस टाइम क्या पता है, मैं क्या बना सकता हूँ। मैं कॉलेज में घुसा हूँ, मेरे को पता है कि मैंने कॉलेज में कैसा एडमिशन लिया है। आई स्टार्टेड बाय फ्रॉम दैट कि चलो मैं बताता हूँ कि मैंने कॉलेज में कैसे एडमिशन लिया। कॉलेज हॉस्टल लाइफ के बारे में बताते हैं। मेरे को नहीं पता था यार कि मैं पॉडकास्ट में आ जाऊंगा, या फिर मेरे को नहीं पता था कि मैं यही बनाता रहूंगा आगे। आई जस्ट स्टार्टेड दैट कि चलो डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ बनाते जाएंगे। फिर कॉलेज के बारे में बनाकर फिर एकदम से ना पॉडकास्ट वगैरह बूस्ट बूम में आए, लॉकडाउन लग गया, क्रिप्टोज वगैरह बहुत ज्यादा चल रहा था, तो Hmm. मैं क्रिप्टो में जाने लगा। और मैं मतलब एज आई एम परस्यूइंग माय बीटेक राइट नाउ, तो मेरे को प्लेसमेंट्स वगैरह भी एक्सप्लोर करनी थी, लाइक कोडिंग की जर्नी भी एक्सप्लोर करनी थी। तो मैंने बहुत लोगों से सुना कि क्या करना चाहिए कोडिंग में। लोगों ने बोला डीएसए, वेब डेवलपमेंट मैनेज करो, ये वाली लैंग्वेज करो, ये वाली लैंग्वेज करो। फोर्थ ईयर में यू विल रिक्वायर सम ऑफ दी रेफरल्स जिसके थ्रू आप कंपनी में जा सको। मैंने लिंक्डइन चालू करा अंशुमन। तो फिर यार मतलब व्हाट आई डिड नेक्स्ट इज कि मैंने सोचा लिंक्डइन के थ्रू अमेजोन, फ्लिपकार्ट और एप्पल, मतलब इन सब के ना, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और ब्लिंकिट वगैरह के ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को पिच करते हैं। Hmm. उनसे पॉडकास्ट लेते हैं पहले। पॉडकास्ट पे सब कुछ जान लेंगे कि आपने क्या करा है जो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल मिला, कोडिंग वगैरह में क्या करा, क्योंकि उनसे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। मेरे Right. कॉलेज के सीनियर्स खुद प्लेस नहीं हुए और वो मेरे को ज्ञान दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलो उनसे पूछते हैं। और देखो उसमें क्या क्या बेनिफिट होगा, मेरा यूट्यूब का कंटेंट बन जाएगा, ठीक है। मैं Right. उनसे सारी चीजें प्लेसमेंट के बारे में पता कर लूंगा। Hmm. मैं उनकी लिंक्डइन पे पोस्ट डालूंगा, वो रीशेयर करेंगे, तो वहां से मेरे पे Reach out ट्रैक्शन to it. बढ़ेगा। तो For ये sure. छोटी छोटी चीजें मैंने मेक श्योर कर कर उनसे कर ली। कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा, पॉडकास्ट बूम पे था उस टाइम। तो Hmm. ये कर कर मैंने अराउंड 7 से 8 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को पिच करा, उनके साथ नेटवर्क्स बनाए कि फ्यूचर में जब मैं प्लेसमेंट के लिए जाऊंगा तो यही सारे बंदे होंगे जो मेरे को रेफर करेंगे अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट में। तो Very good strategy. दैट Uh, वाज द सिनेरियो टिल देन। उसके बाद फिर थर्ड सेमेस्टर में एज आई मेंशन्ड कि आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, hmm. स्टार्टअप्स वगैरह। तो मैंने उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाई, जैसे मेरा टर्न आउट होता रहा। फिर मैंने फिगर आउट करा यार कि कॉलेज प्लेसमेंट्स विल बी द सिनेरियो जो मेरा स्टार्टअप है, एल्यूमनाई का चीज है। फिर मैंने अलग अलग एल्यूमनाइज को कॉलेजेस के रीच आउट करना चालू करा, जिनके लाइक करोड़ों में पैकेज है, एक पर्टिकुलर कॉलेज से जा रहा है वो बंदा। और फिर उसको रीच आउट करने के बाद मेरे को एक अपना टारगेटेड मार्केट मिला कि चलो मैं अपने कॉलेज फ्रेंड्स के लिए एल्यूमनाइज का सेगमेंट रखूंगा, उनको अपने पॉडकास्ट पर लेकर आऊंगा, और कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से आई विल बी चार्जिंग अ फीस पर्टिकुलर। दैट वाज द सिनेरियो टोटल।
Very nice idea. So, I mean, you started content creating since your college journey, and then you continued, you pivot, you did also lot experiments, right? And then finalized, Yeah. you are doing a podcast based business, we can say. So, I mean, when you're creating the content on the YouTube, then what are the things which you're taking care of? Even it might be related to the podcast, it might be related to the business as well. So how do you look your target audience that it will be fitted? Do you have any research before, I mean, giving the video on YouTube? How do you do that except the LinkedIn and all Yeah. those social media platforms? Suman, you can just have a look over my past video. I never told people to subscribe, to share, to like. That was Yeah, the yeah. lack which I am right now facing, as my just subscriber base is not growing. The thing was, initially I was just creating content to maintain my consistency, to just present whatever I am learning on my ground level. First of all, what I need to do is कि जब मेरे पास topic आता था, I go on research that topic, like what are the major points, what are the major videos which content creators had shared over their YouTube video, YouTube वगैरह में. Mm-hmm. वहां से मैं insights वगैरह gain कर कर अपनी script लिखता था. I had iPhone 6 in the starting when I get into my college. तो वहां से उससे मैं shoot करता था और मम्मी का मैं phone ले लेता था for the mic part. So that's how I initiated creating some of the videos. धीरे धीरे from my internships I earned a good amount of money. So I just bought a second-hand iPhone X and a Right. small K8 mic. तो Mhm. उसके थ्रू I started enhancing my quality. मतलब मैंने क्वालिटी एनहांस करने के साथ साथ कंटेंट एनहांस करा बहुत ज़्यादा. आई ट्राइड सम सिनेमाटोग्राफीज वगैरह वाला पार्ट भी कि Yeah, मैं yeah. प्रोडक्शन वगैरह में भी जा सकता हूँ. आई क्रिएटेड सम ऑफ द फ्रीलांसर्स के लिए भी मैंने बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह क्रिएट करी. दैट हाउ इट ऑल हैड इनिशिएटेड. फिर when I got my first collaboration with the universities, I purchased cameras, प्रॉपर पॉडकास्ट का सेटअप मैंने परचेज करा. सो वहाँ मैंने फिर उन सबको गो थ्रू करा कि कैसे कैमरास वगैरह चलते हैं, हाउ दीज माइक्स यूज टू कनेक्ट, लाइट्स, अच्छा गोडॉक्स की लाइट होती है और एसएल का वो रिसीवर होता है. फिर ये धीरे धीरे सारी चीजें आई एम राइट नाउ ऑल्सो लर्निंग रिगार्डिंग दैट. Very nice. So you just told that you are even also doing lot of things right now. So how do you manage all those things along with your studies, along with your startup, content creation? So how do you manage over there? Yeah, this is the most common questions with people which people ask me. Yeah, the thing is कि मतलब I believe that I'm very very workaholic. I don't care about any of the stuff which is not making me like benefits या कोई भी जो मेरे काम का नहीं है. That can be normal, आप मूवी देख रहे हो या फिर बाहर जा रहे हो वॉक करने या फिर आप खाना खाते हो कोई भी काम कर रहे हो. मतलब आई वांट एवरी मिनट ऑफ माय डे यूज्ड टू बी वेरी प्रोडक्टिव. मैं खाना खाते वक्त भी कोई बिजनेस से रिलेटेड मूवीज देखता रहता हूँ. मॉर्निंग में 4 से 6 मेरा रूटीन रहता है पढ़ाई का और फिर 6 से 8 मेरा जिम रहता है विच मेक्स मी डिसिप्लिन थ्रू आउट द डे. और फिर 6 से रात को 12 बजे तक आई डोंट वांट एनीवन जो मेरे को मेरी डेस्क से दूर करे. आई वांट ईच एंड एवरीथिंग टू बी ऑन माय टेबल और बस मेरा वो काम चलता रहे. तो यार द मेन मोटिव डिवाइड तो ऐसा करना होता है कि रात को सोते वक्त अंशुमन आई यूज टू क्रिएट अ टू डू लिस्ट जो अगले दिन मतलब करना होता है. प्रायोरिटी में काम लिख लो कि यार मतलब आज ये वाला काम बहुत प्रायोरिटी है, इस पे ऊपर रिसर्च करनी है और वो इतने घंटे करनी है, ठीक है. Hmm. उसके बाद सेकेंड हाफ में ये करना होगा. फिर चलो मैं लंच कर लूंगा और मैं उसके बाद नहा लूंगा. फिर उसके बाद आई विल बी टेकिंग सम ऑफ द मीटिंग्स या मेल्स चेक कर लूंगा मैं. कभी कभी यार वो सारा रूटीन फॉलो नहीं हो पाता, सब मैशअप हो जाता है. कभी कभी वो बहुत अच्छे से फॉलो हो जाता है. तो दीज आर द लाइफ पार्ट्स गोइंग ऑन, चलती रहती है. हमेशा दिमाग में ना एक हिट रहता है कि यार हाँ वो लिस्ट में अब वो वाला काम लिखा हुआ है, वो वाला काम लिखा हुआ है. तो व्हेनेवर आई यूज्ड टू गेट डिस्ट्रैक्टेड ना कहीं किसी और चीज में, आइदर आई स्टार्टेड टॉकिंग विद माय पेरेंट्स या फिर कहीं मैं बाहर जाने की सोच रहा होता हूँ, तो मेरे को वो याद आ जाता है कि यार मतलब देयर आर थिंग्स जो उस कॉपी में लिखी है मेरी या फिर जो मेरे बोर्ड पर चिपकी हुई है एंड मेरा आज का गोल है उनको पूरा करना. दैट्स हाउ यार जस्ट बी एंथुसियास्टिक और मूव टुवर्ड्स योर गोल तो सब बन जाते हैं Very मैनेज. nice. I mean, setting the priority is the key, right? And even writing is also very important यार if you मतलब want. राइटिंग अंशुमन विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर मी पीपल. मतलब यू नो व्हाट, लाइक अभी रिसेंटली आई जस्ट मतलब स्पेंड अराउंड 3 to 4 hours ऑफ माई गेटिंग इनटू नोशन. Oh यार my God. पता नहीं मतलब हो ही नहीं पा रहा नोशन में ना. मतलब आई डोंट लाइक दीज मतलब ऑनलाइन चीजें लिखना. मेरा टास्क जब तक मैं अपनी मतलब कॉपी पेन पर लिखूंगा नहीं ना
हर चीज, तो वो मेरे से नहीं होगा। एवरी टाइम जहाँ भी मैं बाहर जाता हूँ, यूज टू कैरी अ पेन, अ नोटबुक छोटी सी अपनी पॉकेट में, एवरी एवरी टाइम वेन एवर कुछ भी चीज सीखने की होती है, आई यूज टू राइट इट इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑन माई फोन। मेरे को पता है वो हो जाएगा, तो मैं कॉपी में लिखता हूँ, अपनी छोटी सी कॉपी, मतलब एक है मेरे पे। तो वो चीज़ें मेरे लिए बहुत प्रोडक्टिव, सबसे पहला प्रोडक्टिव चीज़ करती है, जिससे ऑटोमैटिकली आप टाइम मैनेज कर पाते हो। अगर आप मतलब उसको सबको ना, मतलब आप सब अगर डिस्ट्रीब्यूटिव रहेगा ना आपका, तो आप शायद टाइम मैनेज नहीं कर नहीं कर पाओगे, पाएंगे। बिकॉज़ कि देयर आर सेवरल थिंग्स व्हिच यू हैव टू डू एंड यू आर फिगरिंग आउट कि कौन-सी पहले करूँ, कौन-सी क्या करूँ। बट इफ यू विल बी मैनेजिंग ऑल द थिंग्स ना, सो यू विल बी प्रोडक्टिवली डू सच टास्क। Very great, very nice. So I think it's going to be last segment of our podcast in which we'll be talking about the various. I think the people who had been gone through with the podcast, they will be knowing that कि क्या क्या चीजें ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आरव भाई बता चुके हैं कि there are lot more thing he tried. So if you will copying him, that you will get to know and get a good experience that what you can do. By the way, I would like to tell you the objective of my YouTube channel, which is like the people who come from tier 2 and tier 3 colleges, right? The same thing which you also shared, that कि आप alumni से contact कर you used to get onto your podcast and get their insights. The same thing I am also doing for the tier 2 and tier 3 colleges, कि वो ये believe कर सकें कि yes, if our alumni can get that thing, right, so we can also, so that it would be work as a motivation for them. So what I feel, so I started the podcast, so where I also, have the very variety of contents where I used to connect with, I mean, the people who are good in placements, working in Google, Amazon, and doing good in startup as like you guys, right? And almost in every field, if he's in college and doing very well. So yes, that was one of the thing. And one last advice which you wanted to share with the college student, if someone is joining, suppose that someone is in their college, right, as we are right now. So one very precious advice you wanted to give them if they wanted to get succeed. I think first of all, everyone stucks while mentioning, while choosing their passion. Hmm. मेरे पास तो वही एक मतलब बहुत ज़्यादा डिलेमा था कि यार मतलब मेरे को क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। मैंने अगर वो अभी कॉलेज टाइम में चूज़ नहीं करा और जॉब में चूज़ करना पड़ा, बहुत लेट हो जाएगा। चूज़िंग योर पैशन कि आपको क्या काम आगे करना है विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। और Hmm. उसकी एक अच्छी एडवाइस अंशुमन मैं ये दे सकता हूँ कि किसी के पास भी उसकी एडवाइस नहीं है। उसकी एडवाइस ये है कि कीप ऑन एक्सप्लोरिंग डिफरेंट सेगमेंट, जिसमें आपको किक मिल रही है, जिसमें आपको मजा आ रहा है, जिसमें आप बिना थके हुए काम कर पा रहे हो, बिना घड़ी को देखे काम कर पा रहे हो, उस चीज को मास्टर कर लो। टू गेट दैट पर्टिकुलर थिंग ना, तो आपको अलग अलग चीजें ट्राई करनी होगी अप टू एन एक्सटेंट। जब आप 100% दे दोगे एंड यू फील कि चलो दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, मेरे को मूव ऑन करना चाहिए कुछ किसी और चीज में, दैट विल बी द परफेक्ट थिंग मेरे हिसाब से कॉलेज स्टूडेंट के लिए। चूजिंग योर That's पैशन right. will be the thing. Yeah, exactly. All right, all right. Thank you so much. Also, this was whole podcast which I wanted to have and to give the deliver to our audience. So yes, thank you so much for giving your time and precious advices to the college student. Thank you so much, Brad. Thank you so much for this opportunity, Anshuman. Best of luck. Thank you.